recording first of all. Okay, so let's begin with the sentence. So let's understand firstly what is the meaning of a sentence. Now on your screen, आप देखते जाओ साथ साथ में. What is a sentence? It is a group of words. ये एक words का group होता है. कोई भी sentence होगा उसमें words का group होगा. और उस group of words का एक meaning होना चाहिए. So it is a group of words which has a meaning. उस group का meaning होना चाहिए. ऐसे हम कुछ भी बोल देंगे उसका meaning नहीं होगा तो वो sentence नहीं होगा, right? So group of words which has a meaning and which starts with a capital letter. ऐसा होता है? Show me your thumbs up. Am I right? क्या एक sentence capital letter से start होता है? होता है start या नहीं? Show me your thumbs up. किसको लगता है कि sentence capital letter से start होता है? Very good, nice. And one more thing, it ends with a full stop or a question mark. हर एक sentence के last में हमें या तो full stop लगाना होगा या फिर question mark, right? So sentence is a group of words which has a meaning. It starts with capital letter and it ends with a full stop or a question mark. ये चार चीजें हमारे सेंटेंस में होनी चाहिए, ठीक है? इनमें से कुछ भी एक मिसिंग होगा अगर, then that will not be a sentence. कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कोई मीनिंग ही नहीं होगा, then in that case उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते उसको. Now let me show you examples, okay? You have to write in the chat box yes or no. So first is Tanvi temple goes daily too. Is this a sentence? Write yes or no in the chat box. क्या इसे हम sentence बोलेंगे? Tanvi temple goes daily too. So this is not a sentence. The answer is no. ये हमारा sentence नहीं है. Because it does not have any meaning. इसका कोई meaning ही नहीं है. Now I have a next sentence. Tanvi goes to temple daily. Now tell me, is this a sentence? Tanvi goes to temple daily. Yes or no? क्या ये sentence है? Tanvi goes to temple daily. इसका meaning है कि ये capital से start हो रहा है. क्या कोई फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क है इसके पीछे? So yes, I'm getting the answer. Yes, कि ये sentence है because it has meaning. It starts with capital letter and ends with a full stop. Take a look at the next sentence. Intelligent boy and Dheeraj is. So Samrit, unmute yourself and tell me, is this a sentence? Intelligent boy and Dheeraj is. Unmute करके बताओ समरीत, ये sentence है? Yes or no? ये है sentence? No. Why समरीत? ये why? Tell me why? ये sentence क्यों नहीं है? इसमें Unmute yourself बेटे. Your mic is muted. Mic unmute करो. Now tell me. Ma'am, because it has no full stop, question mark, and first letter is not big. Very good. Excellent answer, Samrit. Very good. So this is not a sentence because ना ही full stop है, capital से भी start नहीं हो रहा, and it does not have any meaning. इसका कोई meaning भी नहीं है, तो ये sentence नहीं होगा. Now, Abhinav will tell me. Dheeraj is an intelligent boy. क्या ये sentence है? Dheeraj is an intelligent boy. Yes, ma'am. Yes, this is a sentence, but देखो इसमें full stop नहीं है. इसमें कोई भी full stop नहीं है. That means something is missing in this sentence. Dheeraj is an intelligent boy. मैम ने यहाँ पे टिक किया है, but देखो गलती से यहाँ पे full stop नहीं डाला हुआ है. तो ये भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा. ओके, इसमें जब फुल स्टॉप ऐड होगा तो फिर हम इसको टिक कर सकते हैं. नाउ अब आपको ये जानना जरूरी है, व्हाट इज द
स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अब आप बोलोगे कि मैम स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी है, ओके, सबसे ऊपर आपका हेड, फिर फोरहेड, eyes, nose, you have cheeks, right, your lips, your chin, neck, और इस तरह से आपके सारे बॉडी पार्ट्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड है। एम आई राइट? एक ऑर्डर में अरेंज्ड है। सभी की बॉडी ऐसी होती है? डिफरेंट तो नहीं किसी की बॉडी, किसी की ईयर्स उसके पैरों में तो नहीं है, या किसी का नोज उसके पेट पे तो नहीं लगा हुआ, या किसी का ऐसा है कि किसी की लेग्स ऊपर है और आर्म्स नीचे हैं, ऐसा है कोई? है कोई ऐसा? नो, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर ऑर्डर। ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है जैसी हमारी है, सबके पास 2 ईयर्स है, 2 आईज, 1 नोज, 2 चीक्स, 1 चिन, पेट है, लेग्स है, पैर है, हैंड, सबके एक जगह सेट है, हम सब ऐसे ही दिखते हैं, राइट? सिमिलरली अ सेंटेंस आल्सो हैज अ स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस का भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्डर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स एक ऑर्डर कि वो कैसा होना चाहिए। तो हमारे सेंटेंस में क्या क्या होता है? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। ओके, 3 थिंग्स आर देयर। रिपीट विद मी, सब बोलेंगे लेकिन माइक को कोई भी ऑन नहीं करेगा। ओके, वी हैव 3 थिंग्स, एवरीबॉडी रिपीट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। You will not switch on your mics. Subject, verb, object. Again, subject, verb, object. Okay, these 3 things are here. Now you'll ask कि मैम subject क्या होता है? So see, the person or thing that does something. मतलब वो इंसान या चीज जो कुछ करता है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ जसराज इज रीडिंग अ बुक, इफ आई से जसराज इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है? वर्क कर रहा है, एवरीबडी स्पीक, माइक अनम्यूट नहीं करना। कौन वर्क कर रहा है? कौन बुक रीड कर रहा है? जसराज, है ना? इफ आई से जसराज इज रीडिंग अ बुक, तो कौन बुक रीड कर रहा है? जसराज रीड कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन होगा? जसराज। मतलब जो कोई काम करता है या कोई चीज जो एक्शन कर रही है, that will be the subject. Next is verb. This you already know. Verb means to do something, an action. एक एक्शन करना, उसे हम verb कहते हैं। या फिर state of being. If I say I am a teacher, तो मैं क्या हूँ? मैं टीचर हूँ, ठीक है? सो वर्ब में 2 चीजें आ जाती है, एक्शन होगा या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मींस कि कौन क्या है, कोई चीज कैसी है। इफ आई से दिस बुक इज वेरी बिग, ये बुक बहुत ही बड़ी है, तो कैसी है? इट इज अ बिग बुक, तो ये इसकी स्टेट ऑफ बीइंग आ जाती है। तो हमारे वर्ब में सिर्फ जंपिंग, प्लेइंग ये सब नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, लाइक इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब हमारे वर्ब्स होते हैं। ओके, इज, एम, आर, हैज, हैव, was, were, all these are the helping verbs, वो भी verb का ही पार्ट होते हैं। And next is the object, a person or thing that receives the action, मतलब जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है। सबसे पहले है सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, वर्ब कौन सा एक्शन किया गया, और थर्ड है ऑब्जेक्ट किसके ऊपर एक्शन किया गया। सबको समझ में आ रहा है? देन शो मी योर थम्स अप। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स एक्शन कौन कर रहा है, वर्ब मीन्स क्या एक्शन हो रहा है, और ऑब्जेक्ट मीन्स किसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। ठीक है? So let's understand it through some examples. Again, I have subject, verb and object. ठीक है? तो अब देखो, एक सेंटेंस है मेरा, अतुल is eating an ice cream. Right? So which is the subject? Write in the chat box. सब कुछ आपकी स्क्रीन पे है available. Write in the chat box. In this sentence, which is the subject? Action कौन कर रहा है? Atul is eating an ice cream. Very good. Mannat has answered. Dhankor has answered. Very good. Subject is Atul, क्योंकि Atul action कर रहा है.
नेक्स्ट इज वर्ब. वर्ब क्या है? एवरीबॉडी राइट द वर्ब इन द चैट बॉक्स. देखो मैंने वर्ब के नीचे क्या लिखा है, इज ईटिंग. अकेला ईटिंग नहीं आएगा, इज ईटिंग. जैसे आई टोल्ड यू, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ओके, ईटिंग मेन वर्ब है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो है वर्ब ही लेके. सो वर्ब में हम क्या लिखेंगे, इज ईटिंग. ये एक्शन हो रहा है तो इज ईटिंग. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ऑब्जेक्ट. एक्शन किसके ऊपर किया गया, किस चीज को खाया गया, आइसक्रीम को खाया गया. सो द ऑब्जेक्ट इज एन आइसक्रीम, राइट. ऑब्जेक्ट इज एन आइसक्रीम, राइट. सो हमने कैसे सीखा, सब्जेक्ट इज द पर्सन और अ थिंग विच डज द एक्शन. जो चीज या इंसान कोई काम करेगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे. वर्ब मीन्स कि क्या काम किया गया, एक्शन कौन सा किया गया, और उसके साथ हमने इज, एम, आर, हैज, हैव ये भी यूज कर देने. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स किसके ऊपर काम किया गया. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. Kapil reads English novels. Now again write the subject in the chat box. Which is the subject here? Tell me, which is the subject? Subject means जिसने काम किया. So which is the subject in this sentence? Kapil is the subject. Very good. Everybody write, which is the subject? Kapil is the subject. Very good. And then which is the verb? Kapil ने क्या काम किया, कौन सा action किया उसने? Which is the verb here? Very good. The verb is reads. उसने रीडिंग का एक्शन किया. कपिल रीड्स, वो रीड करता है. रीड्स मीन्स रीड करता है. क्या रीड करता है? जब रीड करेगा तो कोई बुक ही रीड करेगा, तो किस चीज के ऊपर एक्शन हुआ, इंग्लिश नॉवेल्स. ओके, तो इंग्लिश नॉवेल्स को उसने रीड किया. तो जब उसने नॉवल को रीड किया होगा तो नॉवल के पेजेस पलटे होंगे, तो नॉवल के ऊपर एक्शन हुआ. Kapil reads English novels. So Kapil is the subject, reads is the verb, and English novels are the object. Now I have a question for Jayanti. Jayanti, please unmute yourself, bete. Good morning, ma'am. Good afternoon, Jayanti. Jayanti, can you please tell me what is the meaning of a subject? Ma'am, subject meaning जिससे एक्शन होता है. नो, सब्जेक्ट का मीनिंग ये नहीं होता, अब उल्टा बता रहे. Try once, try one more time. Read the sentence on the screen. Kapil reads English novels. Hello. Hello. क्या किसी और की मुझे आवाज नहीं आनी? Who is saying hello, hello again? Please mute yourself. Okay, Mannat. Yes, Mannat, please unmute yourself and tell me what is the meaning of a subject? Ma'am, Mannat Batra और मैं. Mannat Batra. Where is Mannat Batra? Ma'am, I don't know. Okay, Prabhnoor. Prabhnoor बताएंगे what is the meaning of a subject? That means आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, आपके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि किसको समझ में आया, किसको नहीं आया. सब्जेक्ट क्या होता है मैंने बताया आपको. Okay, there is somebody in the chat box who wants to tell. Okay, Dhankor, आप please बताओ what is the meaning of subject? Good afternoon, ma'am. Meaning of a subject is that people which we are who जिसके द्वारा हमने जो जिसके द्वारा वो चीज है जिसने वो चीज की है.
वेरी गुड, जिसने वो चीज की है, परफेक्ट आंसर धनकौर। ओके, नाउ सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी चीज है। जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, दैट इज सब्जेक्ट। ओके, मान लो मैंने कुछ काम किया तो मैं सब्जेक्ट हूँ, आपने कुछ काम किया तो आप सब्जेक्ट हो। जो इंसान या जो चीज काम करती है दैट इज अ सब्जेक्ट, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है तो वो सब्जेक्ट है। आपके सब्जेक्ट्स वैसे भी होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, पंजाबी, तो हम कहते हैं ना कि कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। सब्जेक्ट मीन्स टॉपिक। ओके, किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, या जिसने वो काम किया है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। नाउ इज इट क्लियर? जिसको क्लियर हुआ है प्लीज रेज योर थम्स, शो मी योर थम्स लाइक दिस, जिसको क्लियर हो गया है। यस बेटा। मैम यस बच्चे, आगे भी बोलो। नेम ऑफ सब्जेक्ट। मैम नेम ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है। यस बेटा, उस देखो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसको नेम तो होगा ही होगा ना। ओके, सब्जेक्ट मीन्स किसके बारे में बात की जा रही है या फिर कौन काम कर रहा है। लाइक इन द सेंटेंसेस आप स्क्रीन पे देखिए, अतुल इज ईटिंग एन आइसक्रीम, तो इस सेंटेंस में अतुल इज द सब्जेक्ट। अतुल कुछ काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो अतुल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, कपिल रीड्स इंग्लिश नॉवेल्स, सो कपिल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि कपिल रीड कर रहा है नॉवेल को। ओके, तो जो पर्सन काम करेगा या फिर जिसके बारे में बात की जाएगी वो हमारा सब्जेक्ट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज द वर्ब। वर्ब मीन्स, सिमरप्रीत विल टेल अस व्हाट इज अ वर्ब। मैम किसके अंदर मैम? आप ऐसे बताओ कि वर्ब होता क्या है, व्हाट इज अ वर्ब। मैम Your mic is mute. मैम एक्शन वर्ड। Very good, action word. So Simarpreet, जैसे in the sentence I have mentioned is eating, क्या is भी verb होगा? नो मैम। देखो verb के नीचे मैंने लिखा है is eating, is होगा verb हमारा? Yes, is eating में is भी हमारा verb है, लेकिन is है helping verb। तो आपने ये याद रखना है कि is, am, are, was, were, has, have, ये सभी verbs ही हैं, ये भी verbs ही होते हैं। ओके, तभी तो देखो मैंने वर्ब के नीचे इज ईटिंग लिखा है, अकेला ईटिंग थोड़ी ना लिखा है, इज ईटिंग लिखा है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज फॉर मेबल। यस मेबल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? यस मेबल, क्या होता है बेटे ऑब्जेक्ट? शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। लेट मी आस्क फ्रॉम किरण नूर। हाँ जी बेटा किरण नूर, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? किरण नूर, unmute yourself, tell me what is object. ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैम his her मैंने बेटा मीनिंग पूछा आपसे, क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट, ओके किरण नूर, म्यूट योरसेल्फ। ऑब्जेक्ट मींस जिस चीज के ऊपर एक्शन होता है। देखो, एवरीबडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सब्जेक्ट काम करता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। ओके, सब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। तो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सब्जेक्ट काम करेगा और ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका असर होगा। सो आई विल शेयर अ वीडियो आल्सो फॉर दिस। सब्जेक्ट काम करेगा और ऑब्जेक्ट के ऊपर काम उसका होता है, राइट? एक आपको वीडियो शेयर की जाएगी इसके लिए, सो यू दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओके,
Now, open your books. आप पेज नंबर 5 पे देखिए, पेज नंबर 6 पे आ जाइए जरा. There is an exercise. पेज नंबर 6, exercise number 1. Open your books at page number 6, exercise number 1. बंद होगी क्या फोन? Everybody please mute yourselves. Ruhi Lekhi, please mute yourself. Okay, so the exercises arrange these words so that they make sentences. Do not add any new words. The first one has been done for you. And remember to add capital letters and full stop. Everybody Excuse me, ma'am. yourselves. 100%. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हम ये कौन सा पेज नंबर निकालना है बुक में? This is page number 6. बेटा अपनी बुक्स चेक करो, आपके चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पेज देखो, एक्सरसाइज नंबर 1. पर मैम ये तो पूरा मेरा भरा हुआ है. Excuse me, ma'am. Do you have this page, all of you? See, I'm showing the book. Do you have Excuse me, this ma'am. page? किसको ये पेज मिल गया है? Excuse me, ma'am. But page is full. मैम मुझे मिल हो सकता है आपकी बुक्स नहीं है तो उसमें शायद पेज नंबर न्यू होगा, कोई और पेज नंबर होगा, बट आप बस इतना देखो, आपने एक्सरसाइज नंबर 1 निकालनी है. जिनको मिल गया है प्लीज शो मी योर थम्स अप दैट यू हैव गॉट एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ चैप्टर 1. Excuse me, ma'am. यस बेटा. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम यहाँ पर मैम बेटा लिसन टू मी केयरफुली. हो सकता है आपके पास न्यू बुक्स होंगी, मेरे पास पुरानी वाली बुक है. ओके, सो क्वाइट पॉसिबल आपकी न्यू बुक में शायद पेज नंबर चेंज होगा. ठीक है, अब आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 वो निकालिए. चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1. अब यहाँ पर है क्या, जंबल सेंटेंसेस है. बेटा जिसको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. आफ्टर द सेशन आप मुझे कॉल करके पूछना कौन सा पेज है. ठीक है, जिसको भी पता नहीं चल रहा वो बस उसको सुन के समझे. That child is requested to only listen to me and मैम पर मुझे पेज मिल okay. Now what you have to do is here, यहाँ पर आपको कुछ जंबल्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपने इनको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. So the first sentence is a fruit and apple is. यही है ना आपका फर्स्ट सेंटेंस, a fruit and apple is. So write the correct answer in the chat box. इसको हम कैसे कन्वर्ट करें कि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारे पास आए. क्या आंसर होगा इसका? You have to write in the chat box, all of you. A fruit and apple is. Write in the chat box. Nobody will speak. A fruit and apple is. So you have to take care of these things, that the first letter should be capital and there should be full stop at the end. होना चाहिए. Some children are writing in the chat box but they are not taking care of the capital letter, they are not taking care of the full stop, कुछ भी नहीं लगा रहे. So you have to write proper sentence. Excuse me, ma'am. Page number. बेटा पेज नंबर आप खुद देखिए, चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है बुक. पेज नंबर कितना करा रहे? Excuse me, ma'am. Listen to me carefully. जिसको पेज नंबर नहीं मिल रहा है वो क्लास के फिनिश होने के बाद मुझे कॉल करके पूछ सकता है. अभी आप सिर्फ स्क्रीन पे देखो और उसको समझो. So the answer to first question is an apple is a fruit. Okay, an apple is a fruit.
एप्पल एक फ्रूट होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया। नाउ कैन समबडी टेल मी कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल इज अ फ्रूट, क्या सब्जेक्ट है हमारा? और हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है सेंटेंस में। यू नो द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हमने भी स्ट्रक्चर किया। सो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है आप बताएंगे? सब्जेक्ट है मैम एन एप्पल। ओके, एन एप्पल आप बोलेंगे, एन एप्पल यहाँ पर सब्जेक्ट है। ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस, cocks crow morning in the, cocks crow morning in the, तो यहाँ पर कॉक्स, कॉक्स जो है वो एनिमल है, ठीक है, कॉक्स एनिमल है। क्रो, यहाँ पर क्रो का जो मीनिंग है ना, क्रो यहाँ पे बर्ड नहीं है, क्रो जो है ना वो कॉक्स की साउंड होती है। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्रो कॉक्स की साउंड होती है। बेटे कॉक्स की साउंड होती है क्रो। सो द करेक्ट आंसर इज cocks crow in the morning. Please mute yourselves. Cocks का मीनिंग यहाँ पर क्या है? जिनको मुर्गे कहते हैं। ओके, cocks crow in the morning. crow का मीनिंग यहाँ पर है बांग देना। ओके, बांग देना। तो जो मुर्गे होते हैं वो मॉर्निंग में क्रो करते हैं, वो मॉर्निंग में बांग देते हैं, राइट? Yes, cocks crow in the morning. Now next sentence. Thieves catches the policeman. What will be the answer to this question? Thieves catches the policeman. क्या आंसर होगा इसका? मैम इसके अंदर तो आपने थीव लगाया ही नहीं। थीव्स क्या नहीं लगाया बेटे? ध्यान से देखो। Thieves catches the एक्सक्यूज मी policeman. मैम। What shall be the answer? हाँ जी बच्चे। मैम मेरे पास बुक नहीं है। Then please ask your parents to arrange the books as soon as possible. Thieves catches the मैम आपने policeman. थीव्स So what will be the answer? Okay. मैम So the answer is the policeman catches the answer here is the policeman catches thieves. तो जो वर्ड जितनी बार है हमने उतनी बार ही यूज करना है, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा देना है। ओके, अपनी तरफ से कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जैसे जयंती ने लिखा है 2 times द यूज कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास 2 times द दिया ही नहीं हुआ है ना। थीव्स कौन होते हैं? चोर होते हैं, चोर, चोरों को बोलते हैं थीव्स। तो द इस सेंटेंस में एक ही बार है, तो हम एक ही बार यूज करेंगे। द पुलिसमैन कैचेस थीव्स, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेस्ट्स build in trees birds, write its answer. Nests build in trees birds. Nests built in trees birds. Birds can fly very fast. Abhi beta, let's do sentence number 4. Nests built in trees birds. So the answer will be birds build nest in trees. Birds build nest in trees. This is the correct answer. Now all of you listen to me. You have to identify the verb in this sentence. इस sentence में verb कौन सा है आप लिख के मुझे chat box में बताएंगे. Birds build nests in trees. Which is the verb in this sentence?
क्या है इस सेंटेंस में वर्ब? वेरी गुड, इस सेंटेंस में वर्ब है बिल्ड, बिल्ड करना, कुछ बनाना। मैम Build is the verb here. Very good. Subject है हमारा birds, क्योंकि birds के बारे में बता रहे हैं कि birds ये action करते हैं. Verb है build और हमारा object क्या है? Nests in trees. Nests in trees हमारा object होगा. Okay, now let's come to the next sentence. Next sentence is fly birds can fast very. Fly birds can fast very. So tell me, what's the answer? First letter should be capital and there has to be a full stop also. Fly birds can fast very. So what will be your answer? Very nice. Anantika has also given the answer. So the answer is birds can fly very fast. Birds can fly very fast. This is the answer. Very good, all of you. So हम jumbled sentences में से meaningful sentences बना रहे हैं. Now next is a breast has the red robin. So you have to again make the meaningful sentence out of it. Yes, you can, beta. A breast has the red robin. So what will be answer? See, robin is a bird. Just for your hint, robin एक bird होता है, एक bird का name होता है, right? So अब उस bird के बारे में कुछ बता रहे हैं in this sentence. So what can be the answer? Try. Very nice. Ma'am, what is the meaning of breakfast? But it is not breast, it's breast. Breast हम कहते हैं सीना, and इसकी chest को हम कहते हैं, छाती को कहते हैं ना? Okay? So यहाँ पर answer क्या होगा? The robin has a red breast. This is the answer. The robin has a red breast. Right? So if you are not able to note down the answers now, just don't worry about that because I will share the answer key with you. Okay, so you can note down the answers from there. Abhi aapne sirf samajhna hai. Now next question is, in boys are flying park there the kites. Jaldi se discuss kar lete hain because we are falling short of time. Let me tell you, its answer is boys are flying their kites in the park. Very nice. Some children are very quick in giving the answers. They're typing very fast. I suppose their parents are maybe helping them out. So boys are flying their kites in the park. And similarly, the next is, on days fine blue is the sky. On days fine blue is the sky. So the answer is, the sky is blue on fine days. The sky is blue on fine days. कि normal जो अच्छे दिन होते हैं उन दिनों में sky blue color का होता है. The sky is blue on fine days, right? So this is how you have to do this. There is one more sentence. A strong elephant is an animal very. इसका आंसर क्या होगा? An elephant is a very strong animal. So elephant के पहले हम an लगाएंगे. This way you have to complete this exercise, and next, just like this also, one more sentence will be there which you have to complete. Now listen to me quickly that after this, exercise number 2 will be your homework.